it is showing being. ये किसी की पहचान बता रहा है, कौन व्यक्ति, कोई व्यक्ति क्या है. So he is a student. So always remember, whenever verb shows being, जब भी being show करता है, it is used along with the to be verbs. To be verbs क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, is, am, are, was, were, etc. These are called to be verb. And another condition you need to keep in mind is that it should be used alone in the sentence. It should not be used along with the main verb. So I hope it should be clear. Now let's talk about the possession. We have seen action. Whenever main verb is there, it always shows action. Whenever to be verb has been used alone in the sentence, it shows being. Now let's talk about possession. Possession, first understand what possession is. Possession is whatever you have or whatever is in your, you can say, you have or you are the owner of whatever. For example, if I say I have this marker, so this marker is in my custody, I am having this. So to show the possession, I can use verb have. I have a book. I have a book. So to show possession, again there is a condition. To show possession, we generally can use has, have, and had. These are generally used, these three helping verb are generally used to show possession. But another, again, you need to keep one thing in mind, is that these verbs should be alone or should be used alone in the sentence. Let me give you one example. Like if I have written, I have eaten food. I have eaten food. So in this sentence, have has been also used along with it. Main verb it has been also used. So here it's not showing possession. यहाँ पे ये possession show नहीं कर रहा है. What I told you that again, like to be verb, it should be used alone to show possession. For example, you can see this example. I have a book. यहाँ पे जो have यूज हुआ है वो सिंगल अकेले सेंटेंस में यूज हुआ है. सो हियर इट इज शोइंग पोजेशन. सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर. स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप लोग को? वर्ब के जो तीनों फंक्शन आप कैसे पहचानेंगे? Yes, sir. Okay. Yes, so this is what first it was the first topic we had studied yesterday. After that we had studied about the difference between the finite, I think finite or non-finite. Let me check it out. What was the next topic we studied yesterday? Yes, the next topic was main verb and auxiliary verb. Finite verb. First, before it was the main verb versus auxiliary verb. Auxiliary. You can either call it auxiliary or helping. Both are same. So don't be confused. If somebody says what is auxiliary verb, and if somebody says what is helping verb, if somebody asks that what is the difference between auxiliary and helping, so don't be confused. Both are same. एक helping verb को ही auxiliary verb कहते हैं, auxiliary verb को ही helping verb भी कहते हैं. So main verb, students, main verb shows actions. Main verb का work क्या होता है? They always shows actions. For example, he is teaching. So here is helping verb and teaching is the main verb. So it's showing the actions. So whenever you have main verb, so it's always whenever you have a verb which shows action, rather you can say, जब भी आपके पास ऐसी verb है जो action show कर रही है, उस verb को आप क्या कर लीजिए? Main verb. And what is main verb? Helping verb? So helping verb are there of two types. Book में दिया नहीं है, बता देता हूँ. First is model. Model primary. 13 and दूसरा है primary. Primary में भी जैसे हम लोग 2b देखे थे, 2b में क्या जाए? Is, am, are, was, etc. Do में आ जाएगा आपका do, does, did. And similarly have, has, have, had. So these are called helping verb, and verb there is no limitation of this type of verb. Main verb could any verb like run, play, walk, sleep, eat, watch, etc. So these verb are, you can say these verb are called main verb because they shows actions. And why these are called helping verb?
देयर आल्सो शुड बी रीजन, रीजन तो होना चाहिए ना. लाइक दिस वर्ब शो एक्शन, ये वर्ब एक्शन शो करती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, मेन वर्ब. सो व्हाई दिस वर्ब आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, देयर मस्ट बी आल्सो रीजन. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कॉल देम हेल्पिंग वर्ब? जो इज एम आर है, वॉज वर है, नहीं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. देयर मस्ट बी अ रीजन, कुछ तो रीजन होगा. विदाउट रीजन वी कांट. Because they used Yes, alone in the because sentence. because Because they used alone in the sentence. no, this is not the case. To. uh, Because even if these verbs also are used alone in the sentence, he plays cricket, यहाँ तो ये भी alone यूज है, बट आप ये कह सकते हैं सर ये तो एक्शन दिखा रही है इसलिए मेन वर्ब है. बट दिस इज नॉट राइट प्रॉपर आंसर. इन ये alone सेंटेंस में यूज होती है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. दिस इज नॉट प्रॉपर आंसर, नॉट राइट आंसर. एनीवन एल्स? We call them helping verb. Reason is that because they are used along with the main verb in the sentence, and they are used to just help the main verb. For example, he is watching TV. He is watching TV. यहाँ देखिए आप, is भी यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है और watching. So why we are calling it helping verb? Because if you just translate this sentence, वो TV देख रहा है, so main verb is देख रहा है, टीवी देख रहा है, and this verb has been just used to help it out or help the main verb. So these verb are used when these verb are used along with main verb in the sentence to help the main verb, therefore we call them helping verb. जब भी इन verb को हम main verb के साथ यूज करते हैं या इनके साथ यूज होती है, main verb के साथ यूज होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, helping verb कहते हैं, because they are just used to help the main verb or help to are used to help to form a proper sentence. Let's talk about modal verbs. है तो 13. I can also give you formula, but let me just give you idea about modal verbs. So many of you must be knowing, आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा, can, could, Sir, shall. yes, may, might, May. Sir, must, shall, should, etc. These are called modal Will, verbs. would. So ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब दो तरह की है, मॉडल वर्ब्स. इन वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, और ये प्राइमरी जो वर्ब है, तो इन वर्ब को इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं. एंड दीज आर द मेन वर्ब्स. आई थिंक इट शुड बी क्लियर. ये समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज Yes, sir. डिफरेंस काइंड ऑफ मेन वर्ब, काइंड ऑफ मेन वर्ब. Like we studied that, I just forgot to mention, like we said that there were two kinds of helping verb. One is primary and one is modal. Similarly, there are two kind of main verb as well, transitive. First is transitive and second one is Intransitive. So is there anyone who can tell me the difference between transitive and intransitive? You studied. Sir, transitive में ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, जरूरत होती है. और इंट्रांजिटिव में? और सर वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना सेंस कंप्लीट कर सकता है. Yes, right. Now listen again, everyone. Main verb, whenever there is a main verb in the sentence, either it is used transitively or intransitively. Let me give you example. He is running fast. He is running fast. Now, just how many of you are able to identify the main verb here? Where is the main verb in this sentence? He is running fast. इसमें main verb कहाँ है बताइए आप लोग? Sir, running. Running. So if it is main verb, it can be only used two ways. दो तरीके से यूज हो सकती है, या तो ट्रांजिटिवली यूज हो सकती है या तो intransitively. Just try to tell me which way it has been used here. Transitively or intransitively? किस तरह से इसका यूज यहाँ पे हुआ है? Intransitively. Those who are saying intransitively, can they also give me the reason why? Sir, because there is no object. Because object is not there. Yes, because there is no object. What I had told you yesterday, you can identify object in two ways. If you are not able to identify the object by just seeing the sentence, I had told you some other ways how you can identify. So first is, we can ask with the help of what?
टू द वर्ब। व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, एंड जो भी आंसर मिलेगा वही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो अगर हम इससे Object पूछेंगे होगा। व्हाट इज हिज रनिंग, सो इट्स नॉट मेकिंग सेंस ही नहीं बन रहा है। यस, इफ यू आस्क क्वेश्चन हाउ इज ही रनिंग, then it's making Fast. sense, he's running fast. So it's telling the Fast. manner, we are not Fast. getting any object here. कई स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वर्ब के बाद कुछ भी आगे ऐड हो जाएगा तो वही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। दिस इज नॉट द केस। आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, जब भी आप देखिए वर्ब के बाद क्या है, आफ्टर वर्ब, इफ आफ्टर वर्ब प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब। जब भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और एडवर्ब यूज हो जाए तो आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। लाइक इन दिस एग्जांपल, रनिंग वर्ब है, उसके बाद फास्ट वर्ड यूज हुआ है जो कि क्या है, एडवर्ब है। Adverb of लाइक manner. ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, he is playing, he is playing on the roof। आप इस एग्जांपल को देखिए, अगेन मेन वर्ब इज देयर बट जस्ट आफ्टर इट यू कैन क्लियरली सी व्हाट हैज बीन यूज्ड, प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड। सो जब भी इस तरह का कंडीशन बने, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए या इस एग्जांपल में एडवर्ब आ जाए, तो ये मत समझिए कि, अब समझिए आप यहाँ पे वर्ब का यूज इंट्रांजिटिवली ही यूज हुआ है, वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड अनदर पॉइंट वाज दैट, दो पॉइंट हम डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन करना है आपको व्हाट से पता करने के लिए कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। दूसरा है, अगर आपको प्रीपोजिशन वर्ब के बाद दिख जाए, एडवर्ब के बाद तुरंत दिख जाए, समझ जाइए कि वहां पे ट्रांजिटिव यूज नहीं है। और थर्ड पॉइंट इज दैट यू कांट मेक पैसिव वॉइस, we can't make passive voice of the sentence in which main verb has been used intransitively। जब भी मेन वर्ब का यूज इंट्रांजिटिवली यूज होगा तो हम पैसिव वॉइस भी उसका नहीं बना पाएंगे। लाइक इन दिस टू एग्जांपल, मेन वर्ब इसमें भी है, मेन वर्ब यहाँ पे भी है, बट बोथ मेन वर्ब हैव बीन यूज्ड इंट्रांजिटिवली यूज हुई हैं, देयरफॉर वी कांट मेक पैसिव वॉइस ऑफ देम, इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो थर्ड पॉइंट है कांट मेक पैसिव वॉइस। So students, this was about the two kind of transitive and intransitive verb। क्या बिगड़ल बा? किसका बिगड़ गया भाई? सर एक बार और बता दीजिए। किसका क्या बिगड़ गया? रुकने दे, कुछ का किसी का कुछ बिगड़ गया है। चलो बताओ क्या पूछ रहे हो, क्या क्या बता दूं दोबारा, बताइए। कोई पूछना कुछ चाहता है? यस, आस्क, व्हाट डू यू वांट टू नो, बताइए। सर इंट्रांजिटिव वर्ब। यस, दोबारा देख लीजिए। पहले आप समझिए कि मेन वर्ब, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका दो पार्ट है, मॉडल और प्राइमरी, वो हम देख चुके थे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मेन वर्ब के भी अपने दो पार्ट हैं, एक ट्रांजिटिव है, एक इंट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ट्रांजिटिव में कुछ अलग वर्ब आती हैं, इंट्रांजिटिव में कुछ अलग वर्ब आती है, जैसा कि प्राइमरी और मॉडल में था। यहाँ पे वर्ब विल बी द सेम, वर्ब आपकी सेम एक ही वर्ब होंगी। यस, दे माइट बी यूज्ड इन टू वेज, या तो उनको हम ट्रांजिटिवली यूज करेंगे या तो इंट्रांजिटिवली यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ट्रांजिटिवली यूज होता है तो ये कंडीशन बनती है, लाइक मेन वर्ब तो होगा ही, मेन वर्ब होगा तभी तो होगा कि ट्रांजिटिव यूज है कि इंट्रांजिटिव है। तो जब भी ये कंडीशन, मैंने तीन कंडीशन की बात हुई थी। फर्स्ट, जब भी आपको उसमें ऑब्जेक्ट ना दिखे, मेन वर्ब है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है कि नहीं कैसे पता करेंगे? आप व्हाट से क्वेश्चन करके वर्ब से पता कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखिए, अगर इसमें मैं क्वेश्चन करूं व्हाट ही इज प्लेइंग, अगर वर्ब मेन वर्ब है व्हाट ही इज प्लेइंग, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने लिखा है ही इज प्लेइंग ऑन द रूफ। वेयर ही इज प्लेइंग, प्लेस का आंसर मिल सकता है, बट व्हाट गेम ही इज प्लेइंग, वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर। बट इसी को मैं ऐसे लिखता, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि व्हाट ही इज प्लेइंग, सो हियर वी आर गेटिंग एन आंसर कि वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे सेम वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हो गई है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, एंड द सेम वर्ब इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिवली यूज हुई है क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंट्रांजिटिवली जो कंडीशन बनते हैं अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आपको मिल सकता है,
इस तरह से भी पहचान सकते हैं। अगर वर्ड से क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो देख लिए कि चेक कर लीजिए, अगर एडवर्ब है तब भी वो इंट्रांजिटिव होगा। अगर इससे भी कंफ्यूजन है तो चेक करिए, अगर प्रीपोजिशन हो तो वो भी इंट्रांजिटिव होगा। सो दीज आर द कंडीशन व्हेन द मेन वर्ब आर यूज्ड इंट्रांजिटिवली। इतना समझ में आया आप लोग को? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. अब next topic is we have studied the parts of helping verb and main verb. Let's see. Yes. Now the topic is finite and non-finite. What is the difference between finite and non-finite? So is there anyone who knows the difference? What is the basic difference is between transitive, not transitive, finite and non-finite? किसी को मालूम है? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? सर यस बताइए। सर फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अपने फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर। या वेरी गुड। हु इज स्पीकिंग? सर अनन्या सिंह। वेरी गुड। एंड नॉन फाइनाइट? सर वर्ब डूज नॉट चेंज फॉर्म यस गुड, राइट अकॉर्डिंग टू आंसर। द नंबर एंड Yes, केस। in the although it is, I think it is not given in your book, but I will, for your knowledge sake, I will let you know how you can what are these. Infinite verb. Only two topics is given, that verb can be divided into two parts, finite and non-finite. So in non-finite, let's first understand what is the difference. Finites are the verbs, finite verbs are the verbs which change according to tense, subjects and number. Let me give you example. For example, if I write he was a king, he was a king, and if I write he is a king, so look at how, if I have just changed the tense, in the first I have used past simple, so I have used verb was. In the second sentence I have used present simple, present. so I have used is. So it means, it shows that, ये दिखा रहा है कि by changing the tense the verb got changed. यहाँ पे दोनों verb बदल गई, केवल किसकी वजह से? क्योंकि हमने इसका tense क्या कर दिया? Change कर दिया. So चेंज कर दिया। to these two verbs you can say these verbs are which verb? Finite verbs, because फाइनाइट वर्ब। they can be changed. ये बदल सकती हैं according to tense, ये tense के अनुसार बदल सकती हैं. For example, he plays cricket. He plays cricket. देखिए एक एग्जांपल हमने देख लिया टेंस का, कि टेंस के अकॉर्डिंग अगर जो वर्ब बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पे एग्जांपल हो गया. नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अनुसार देख लेते हैं, ये हो गया टेंस के अनुसार. अब सब्जेक्ट के अनुसार, ही प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट. देखिए यहाँ पे हमने टेंस सेम रखा है, आई प्ले क्रिकेट. In the first sentence subject is he, and in the second sentence subject is I. By just changing the subjects you can clearly see the difference. Here we have used as because subject is he, and here we have not used as because subject is I. So it shows that same verb is changeable or can be changed according to the subject. Subject के अनुसार भी change हो सकती है. So ये भी कौन सी verb कैटेगरी में आ जाएगा? Finite. इसका रूल ही है, फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, और नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है. यस ये भी सही है. लाइक दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तो यहां पे आप देखिए सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे आप देख लो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर होने की वजह से भी वर्ब क्या हो गई? चेंज हो गई. सो इनको हम क्या कर सकते हैं? फाइनाइट वर्ब. यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट स्टूडेंट्स थोड़ा कुछ इसके काइंड है, पहले उसको समझते हैं. जीरंड है, दिस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्क्स एज ए नाउन. ऑल्दो दीस थिंग्स आर नॉट गिवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द नॉलेज सेक. जीरंड क्या होता है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनता है, नाउन का वर्क करता है, पार्टिसिपल है.
पार्टिसिपल में भी 3 काइंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट आई एम पार्टिसिपल, जस्ट टेलिंग यू सो दैट आपको समझ सके इसको। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है? वर्ब आईएनजी फॉर्म से बनता है। वर्क किससे करता है? इट वर्क्स एज बोथ एडजेक्टिव और वर्ब। एडजेक्टिव का भी वर्क करेगा और वर्ब का भी वर्क करेगा। पास्ट पार्टिसिपल ये भी है, वर्क एज अ एडजेक्टिव और वर्ब। ये बनता किससे है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। वर्ब थर्ड फॉर्म से बनेगा, एडजेक्टिव और वर्ब का वर्क करेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, when we are to join two sentences, जब हमें दो सेंटेंस ज्वाइन करना होता है, then we use perfect participle। इसका फॉर्मेट याद रखिएगा, it is always used in this format, having plus verb third form। जहां पे भी having plus verb third form देखिए आप समझ जाइए कि क्या है, किसका यूज है? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज। सो कंफ्यूज नहीं होना है, हम उन वर्ब को पढ़ रहे हैं जो क्या है? नॉन फाइनाइट है और जो टेंस, सब्जेक्ट और नंबर की वजह से चेंज नहीं होती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका है इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव कैसे बनता है ये तो समझ लीजिए, ये बनता है आपका टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से। जब भी देखिए टू यूज हुआ हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। ये चेंज नहीं होती है टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। इसको हम एग्जांपल से यहाँ आपको समझा रहे हैं। देखिए इन पे कोई टेंस का रूल काम नहीं करेगा, कोई सब्जेक्ट का रूल काम नहीं करेगा। दे आर अनचेंजेबल एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम नॉन फाइनाइट। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इन्फिनेटिव का एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग। फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू मार्केट टू बाई बुक, टू बाई बुक। I go to market, he goes to market, he goes to market to buy book। अब सबसे पहले हम इन्फिनेटिव पहचान ले। मैंने क्या कहा है? जब भी to is followed by verb first form, this is called infinitive। तो देखिए to तो यहाँ पे भी आया है और to यहाँ पे भी आया है, but problem is that here after to noun has been used, so here ये infinitive नहीं है। but look at here, here after to verb first form has come, so infinitive यहाँ पे अपना यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में भी जो infinitive है अपना टू प्लस बाई है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, आई जस्ट चेंज द टेंस, वर्ब ये बदल गई। जैसे ही पास्ट टेंस यूज किया, वेंट हमने यूज किया, बट टू बाई बुक इज द सेम। अगेन आई हैव जस्ट चेंज द टेंस, आई हियर आई हैव यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो वर्ब वेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गई? गोज हो गई। सो ये तो वर्ब अपनी हो गई फाइनाइट, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। बट स्टूडेंट्स टू बाई, पास्ट टेंस में भी टू बाई ही था और टू प्रेजेंट टेंस में भी क्या है? टू बाई ही है। इट शोज दैट दिस वर्ब इज अनचेंजेबल एंड देयरफॉर इट इज व्हिच वर्ब? नॉन फाइनाइट। इसलिए कौन से वर्ब में आ जाएगा? नॉन फाइनाइट में आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? नॉन फाइनाइट। यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल इसी पे समझिए। टू रीड डेली इज नॉट इजी टास्क, टू रीड डेली 2 hours is not easy, is not easy। to solve that question, to read 2 hours, to read daily 2 hours in school was not easy, school was not easy। Again students, clearly you can see the difference of tense। in the first sentence I have used is in the present tense for present tense and was for past tense, but what we need to know that, look at this, to read and to read, वर्ब ये भी है, बट देखिए टेंस यहाँ पास्ट का यूज हुआ है और यहाँ ईज यूज हुआ है वर्ब प्रेजेंट की वजह से। बट आप देखिए टू रीड भी सेम है वहां पे भी और टू रीड भी यहाँ पे क्या है? सेम है। रीजन क्योंकि ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं हम? जब टू के बाद वर्ब आ जाए वही क्या हो जाती है? इन्फिनेटिव हो जाती है। और ये कौन सी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट, मतलब वो टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। इतना समझ में आया? यस सर। चलिए, वेरी गुड। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Tomorrow I will have Yes, also sir. I will discuss with you the other 2 parts of non-finite,
participle and gerund. And if there is anything which you are not able to understand, you can ask right now. अभी कुछ जो समझ में नहीं आप पूछ लीजिए. आज जो हम लोग पढ़े हैं आप लोग समझ में आया? Yes, sir. Anyone who wants to ask anything? किसी कुछ पूछना है? No, sir. Okay, students, thank you very much. And one student has just stars and some other Sir, symbols are answer there. है. Sir, answer है. क्या हो रहा है? Sir, answer है. सारांश राय है. सारांश राय. सारांश, can you hear me? सारांश राय, आप मुझे सुन सकते हैं?